اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترम मुकर्रम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान आपके पसंदीदा प्रोग्राम इक़रा के साथ हाज़िर खिदमत है। हम जानते हैं कि आप किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों, आप अपने घर में बटन ट्यून करके मुकर्ररा वक्त पर इस प्रोग्राम को देखकर क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सही तिलावत करने का लुत्फ़ और लज़्ज़त हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो यकीनन वो घर में बैठकर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। जवान है वो इसको रिकॉर्ड करके जो मुनासिब वक्त हो उस पर क़ुरआन की तालीम हासिल कर सकते हैं। और हमारे बुज़ुर्ग हैं तो यकीनन वो ख़ुद भी सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। हमारी बहनें जो घरों में रहा करती हैं वो भी क़ुरआन की सही तिलावत और इसके साथ साथ जो सही मफ़ाहीम व मतालिब हैं वो जान सकती हैं। तो आइए इसी जज्बे के साथ अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का सबक सूरह लुक़मान जो कि 31वीं सूरह मुबारका है, उसकी आयात 30 ता 32 पर मुश्तमिल है। आइए इन आयात की तिलावत को महब्बत, मवद्दत, खामोशी, इन्हिमाक, इस्तिग़राक़ के साथ समाअत करते हैं ताकि अल्लाह की रहमतें और बरकतें हम पर नाज़िल हों। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. صدق الله العظيم. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words.
and we are definitely feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. So keep on watching this program and repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. ذلك بأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Dear viewers, now we come to the final and very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then inshallah we romanize or transliterated these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu English translation, as well as inshallah in the end we give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us with intensely. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. In Urdu, ये हैं उसकी कुदरत के करश में, ताकि वो जान लें कि अल्लाह ही हक है और बिलाशुबा जिन्हें वो पुकारते हैं
उसके सिवा वो सब बातिल हैं और बिलाशुबा अल्लाह ही बड़ी शान वाला है, बुजुर्ग है। In English, this is because Allah is the only truth, and that which they worship besides Him are all falsehood, and because only Allah is high, great. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته अलम तर अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरि बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयाति। इन उर्दू, क्या तुम मुलाहिजा नहीं करते कि कश्ती चलती है समंदर में महज उसकी मेहरबानी से, ताकि वो दिखाए तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां। In English, have you not seen that the boat moves in the river by the grace of Allah, that He may show you some of His signs? إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. In Roman, إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. In उर्दू, बेशक इसमें बहुत सी निशानियां हैं हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए। In English, undoubtedly in it are signs for every patient grateful. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. In Roman, وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. In उर्दू, और जब ढांप लेती है उन्हें पहाड़ों जैसी मौजें, उस वक्त पुकारते हैं अल्लाह ताला को खालिस करते हुए उसके लिए अपने अकीदे को। In English, and when any wave befalls them like mountains, then they call upon Allah, having pure faith in Him. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. इन उर्दू, फिर जब बचा लाता है उन्हें साहिल तक, तो उनमें से चंद ही हक पर रहते हैं और नहीं इनकार करता हमारी आयतों का मगर हर वो शख्स जो गद्दार है, नाशुक्र है। In English, but when He brings them safe towards land, then some of them keep to the middle course, and none shall deny our signs, but every perfidious, ungrateful.
नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुँचता चलते चलते इन आयात की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पेश खिदमत है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ु व अन्ना मा यदऊन मिन दूनिहिल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलिय्युल कबीर। अल्लाह फरमाता है ये उसकी कुदरत की निशानियाँ है कि उसने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, चरिंद परिंद को बनाया, दश्त व जबल को बनाया, इंसान व बहाइम को बनाया, अजिन्ना और हर किस्म की मखलूक को बनाया। ये अल्लाह की निशानियाँ है और मखलूक के लिए ज़िंदा रहने के असबाब पैदा फरमाए, ये सब अल्लाह की निशानियाँ है। लेकिन तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हो। तो अब यहाँ पर दुआ का मतलब, दुआ यदऊ जहाँ पर भी आता है, चाहे वो यदऊ ना हो, चाहे वो यदऊ हो, चाहे वो दुआ का लफ्ज़ हो, उसका मादा दुआ हुआ करता है। चुनांचे ये लफ्ज़ जहाँ पर भी आता है इसके कई मानी हुआ करते हैं। दुआ का माना मदद मांगना, दुआ का माना पुकारना, दुआ का माना इबादत, ये सारे मानी कुरान में मुस्तहमल है। लिहाजा हमें देखना ये है कि दुआ का तर्जमा पुकारना कहाँ पर करेंगे, इबादत कहाँ पर करेंगे। इसलिए कि अब अगर कोई किसी अपने बड़े भाई को मुसीबत में पुकार लेता है तो अगर हर जगह पुकारने का माना लेंगे तो अल्लाह फरमाता मुझे छोड़कर जो पुकारते हैं वो मुशरिक है। तो क्या हम अपने भाई को पुकार रहे हैं तो मुशरिक हो जाएंगे? क्या हम अपने उस्ताद को पुकार रहे हैं तो मुशरिक हो जाएंगे? क्या हम अपने किसी बुज़ुर्ग को पुकार रहे हैं तो मुशरिक हो जाएंगे? नहीं जनाब, ऐसा फार्मूला नहीं है। ये आयात जितनी भी हैं इनमें फ़र्क वाज़े रखना चाहिए कि जब दुआ का लफ्ज़ मिन दूनी ही या मिन दूनिल्लाह के साथ आए, ये कुरान का एक पर्टिकुलर लफ्ज़ है। अब अल्लाह के मुकाबिल जब दुआ हो तो फिर इससे मुराद ये है कि कुफ़ार पुकार रहे हैं और अपने बुतों को पुकार रहे हैं और अल्लाह की दुश्मनी में पुकार रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर पुकार रहे हैं। अब ये पुकारने का माना हम इबादत लिया करते हैं। मिन दूनी का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए तो इसका मुतालबा ये है, मकसद ये है कि वो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकार रहे हैं और वो पुकार बतौर इबादत है। अब मुसलमान नबी को पुकारता है तो अल्लाह के मुकाबिल नहीं बल्कि अल्लाह का नबी समझकर पुकारता है और इसलिए पुकारता है कि यही तो वो नबी हैं जिन्होंने हमें बताया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है। इबादत का इस्तिहकाक किसी के पास है तो वो अल्लाह के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। फिर फरमाया कि पहाड़ों जैसी जब मौजें उनके पास आ जाती हैं, ऐसे लोगों के पास जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, अल्लाह के मुकाबिल किसी को पुकारते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अल्लाह तू ही हमारा रब है, राह रास्त पर आ जाते हैं। तो अब इस आयत ने भी हमें बताया कि वो लोग अल्लाह के मुकाबिल उन बुतों को पुकारते थे, तो इसी वजह से जब उन पर हलाक या अज़ाब नाज़िल हुआ करता था तो वो कहते हैं ए नहीं रब, हम तो फ़कत तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह फरमाता है ऐसा वक्त आ जाए तो अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो मालूम ये हुआ कि जब हम किसी को पुकारते हैं और ये समझते हैं कि मदद करने वाला अपनी ज़ात से मदद कर रहा है तो यकीनन ये गुनाह है, ये शिर्क है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम नबी को पुकार रहे हैं और नबी अल्लाह की आता से हमारी पुकार को सुन रहा है, तो अब यही आयन तौहीद है, यही ऐन ईमान है, यही तरीक़ा सहाब है और यही तरीक़ा अहले बैत हुआ करता है। तो दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जो अल्फ़ाज़ जो एक ही मानी में नहीं बल्कि कई मानों में कुरान की मुख्तलिफ़ जगह पर है, तो हमें सही मानों में उसके तफसीरी, उसके लुग़वी, उसके मुहावरतन जो मानी है उन सब का ख़याल करते हुए इन आयात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra and I am your host Dr. Jamil Rathod. In this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So we start our today's program and our today's program consists of verse number 33 to 34 of Surah Luqman, which is the 31st surah of Quran Majid, situated in 21th part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses
respectfully by Qari Ghulam Hassan Al-Hasni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And we are definitely feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. So keep on watching this program and repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم واخشوا واخشوا يوما لا يجزي يوما لا يجزي والد عن ولده والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا
यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, बिल्लाहिल गरूर। इन्नल्लाह इंदहू, इंदहू इल्मुस्साअह, इल्मुस्साअह वयुनज़्ज़िलुल गैस, वयुनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फिल अरहाम, वयअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा, नफ्सुम माज़ा तक्सिबु, तक्सिबु गदा, गदा वमा तदरी, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि, नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन, अर्दिन तमूत, तमूत। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अलीमुन खबीर। Dear viewers, now we come to the final and very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then inshallah we romanize or transliterated these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu English translation, as well as inshallah in the end we give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us with intensely. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. In Urdu, ऐ लोगो डरते रहा करो अपने रब से और डरो उस दिन से कि न बदला दे सकेगा कोई बाप अपने बेटे की तरफ से. In English, O people, fear your Lord and have apprehensions of the day when no father will be of any avail to his son. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. In Roman, ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. In Urdu, और नहीं बेटा बदला दे सकेगा अपने बाप की जानिब से कुछ भी. In English, and not any serviceable son will be able to provide any benefit to his father. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। इन उर्दू, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और न धोखा दे तुम्हें दुनियावी जिंदगी और न फरेब में मुब्तला करे तुम्हें अल्लाह से वो बड़ा मक्कार धोखेबाज। Undoubtedly, the promise of Allah is true. Therefore, let not the life of this world deceive you concerning Allah. इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम। इन उर्दू, बेशक अल्लाह के पास ही है क़यामत का इल्म और वही उतारता है में और जानता है जो कुछ माओं के रहमों में है। In English, undoubtedly, with Allah is the knowledge of the hour, and He sends down rain and knows what is in the wombs of the mothers. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। इन उर्दू, और कोई नहीं जानता कि कल वो क्या कमाएगा और कोई नहीं जानता कि किस सरजमीन में मरेगा। बेशक अल्लाह ताला अलीम है, खबीर है। In English, and no soul knows what it will earn tomorrow, and no soul knows in what land it will die. Undoubtedly, Allah is the knower, all aware. नाज़रीन इकराम, हमारा आज का सबक अपने इख्ताम को पहुँचा। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत, अपनी हाकिमियत, अपने इल्म, अपने जाहो जलाल को बयान फरमा रहा है और इरशाद होता है कि या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमल ला यजज़ी। इससे पहले क्या कहा गया कि हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते आपको गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, हम यकीनन इनको अन करीब मज़ा चखाएँगे। और जब कल क़यामत कायम होगी तो फिर वहाँ पर जो लोग कहते हैं कि हम अपने बाप दादा के रिलीजन पर कायम रहेंगे, हमारा बाप फला था, हमारा दादा फला था, बुतों को पूजता था, हम भी पूजेंगे, तो अल्लाह फरमाता है कि आज तो ये बाप और दादा का नारा लगा लें, लेकिन कल क़यामत में यौमल ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिह वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदी। ना इनके यहाँ बेटे काम आएंगे, ना बाप काम आएंगे, ना दादे काम आएंगे, वहाँ पर कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। वहाँ पर माँ बेटे को देखेगी, पहचानने से इनकार कर देगी, वो अपनी ममता को फरामोश कर देगी। बेटे बाप को देखेंगे तो अपने बाप को फरामोश कर देंगे, वहाँ पर कोई काम नहीं आएगा। एक दूसरे के बांस के दुश्मन बन जाएंगे कि कहीं इसका गुनाह मेरे साथ शामिल ना हो जाए,
या मेरी नेकियां ये कहीं ना ले जाए, एक दूसरे से खौफजदा होंगे, नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे। कुरान कहता है अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, सब दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकीन के, और मुत्तकीन काम आएंगे। कुरान से पूछते हैं कि मुत्तकीन कौन है? कुरान जवाब देता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकीन, कि बेशक अल्लाह के औलिया मुत्तकी हैं। तो मालूम हुआ कल क़यामत में नेक लोग, इबाद सालिहीन, औलिया कामिलीन, उलमाए आमिलीन काम आएंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं आ सकेगा। और याद रखिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले शफाअत का दरवाज़ा खोलेंगे, उसके बाद दीगर अंबिया शफाअत करेंगे, उलमा शफाअत करेंगे, औलिया शफाअत करेंगे, कुरान शफाअत करेगा, माह सयाम के रोज़े शफाअत करेंगे। छोटा बच्चा जो बलूगत से पहले इंतकाल कर जाए, हम नमाज जनाजा में दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इसको हमारा शाफ़े बना, इसको हमारा शफ़ी बना, हमारे लिए शफाअत करने वाला बना, तो वो भी शफाअत करेगा। चुनांचे इसकी बहस बड़ी तवील है, लेकिन याद रखिए कि जितने भी शफाअत करेंगे, मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कि अल्लाह के इज़्न के बग़ैर कोई शफाअत नहीं करेगा। हाँ, शफाअत वो करेगा जिसको अल्लाह इज़्न अता फरमा देगा। चुनांचे ज़िंदगी के हर कामों में ये फार्मूला बना लीजिए कि आप अगर किसी को अल्लाह के गैर को मददगार समझते हैं, उसे पुकारते हैं, उसे शाफ़े समझते हैं, तो बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से समझते हैं। लेकिन कुफ़ार व मुशरिकीन ऐसा समझते थे तो बिइज़्निल्लाह नहीं बल्कि मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के मुकाबिल समझते थे। हम अल्लाह के मुकाबिल ना किसी को शाफ़े समझते हैं, ना किसी को मददगार समझते हैं, ना किसी को हाजत रवा समझते हैं, ना किसी को मुश्किल कुशा समझते हैं। सबको समझते हैं तो बिइज़्निल्लाह समझते हैं, अल्लाह के इज़्न से समझते हैं। और मिन दूनिल्लाह कुफ़ार समझा करते थे। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। और अल्लाह फरमाता है कल के मुताल्लिक कोई नहीं बता सकता कल क्या होने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि माँ के पेट में अल्ट्रासोनिक मशीन बता दिया करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे और आपने बताया कि मैं ये बताता हूँ कि फ़लाँ फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ फ़लाँ का बेटा नहीं है। और फरमाया क़यामत तक के जितने वाक़यात थे, बुखारी की हदीस है कि हुजूर ने सब बता दिए। तो अब क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अल्लाह ना चाहे तो कोई एक ज़र्रे का इल्म भी नहीं रख सकता, लेकिन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से चाहे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते हैं, बर्स के मरीज़ को ठीक कर दिया करते हैं, और घरों में जो कुछ बचाया और खाया जाता है उसका बता दिया करते हैं, परिंदे में फूंक मारते हैं वो उड़ना शुरू हो जाया करता है। लेकिन बिइज़्निल्लाह, अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीनी कहय्यतित तैरी बिइज़्निल्लाह फतनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व तुब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के इज़्न से बंदे भी किया करते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह की दुश्मनी में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये यहाँ पर मतालिब व मफ़ाहिम है जो आपकी खिदमत में बयान की। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और अहादीस नबविय्या को समझ कर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।